Mr. Suban Kumar Mishra, hearty congratulations on securing All India Rank 1 in GATE 2023 in Civil Engineering branch. Thank you so much, sir. Thank you so much. Suban, All India Rank 1 means it's a very proud moment for everyone. It is, sir. On hearing about your All India first rank, what was your first reaction? Sir, like you mentioned, it is a very proud moment. Basically, you can see कि आपने जो 3 साल में प्रिपरेशन किया है वो सब अब सक्सेसफुल हो रहा है. आपको वो रिकॉग्निशन या फिर रिवॉर्ड मिल रहा है बेसिकली, जो आप मे बी डिजर्व करते हैं या फिर मे बी डिजर्व करते हैं उससे भी ज्यादा मिल रहा है. तो वो फीलिंग सर शुरू का रिजल्ट देखने के जस्ट 15-20 मिनट का बाद का फीलिंग, वो सर थोड़ा वर्ड्स में बता नहीं सकते, ऐसा वाला फीलिंग है. गुड. एक्चुअली वन कैन फील इट जब वो खुद का, जब नॉट नेसेसरली फर्स्ट सर, इनफैक्ट जो भी टॉप 10 रैंकर्स भी है, जब वो कोई भी अपनी रैंक देखेगा दे विल फील वेरी गुड सर. वो इमेजिन करेगा. Any rank with a single digit, even 100th rank also. Even 100 rank, exactly, because sir. all these are good ranks, they can fetch even a Correct. PSC job, MTech, IIT admission. Anything they want, right? Anything they want, so they can get it. But first is first. That is First something is first. special. First is only there is only one guy first, so that is, yes. I did not, basically it was very unexpected for me. I was expecting at most a single digit rank. I was expecting this. Realistically, I was hoping कि 20 तक रैंक आएगा शायद, पर जब रिजल्ट देखा वहां पे 1 रैंक है, 1000 गेट स्कोर है, नाम वगैरह सब मैच कर रहा है, वो लगा कि चलो बढ़िया हो गया है. Right. Shubham, how many marks you have got out of 100 in this GATE exam? Sir, I scored 83.11 marks out of 100. 83.11. Yes, sir. Very good. Shubham, can you please introduce yourself briefly? Sure, sir. Sir, I basically, after 12th class, I joined IIT Kanpur for graduation in civil engineering. So in the year 2016, I passed out from there. Basically, वहाँ पे मेरा graduation complete हो गया. उसके बाद campus placement लग गया था Ola Cabs में. Ola Cabs is a startup. वहाँ पे मैंने business analyst की तरह 3.5 years approximately काम किया. तो बेसिकली इस टाइम तक हम आ गए हैं 2020 में, जनवरी के आसपास. उस टाइम पे मेरे को ये था कि अब आई का मतलब आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर, आई वांट टू स्विच टू ईएससी एंड गेट. तो वहां से मैंने 3 साल, अभी मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुका है, 3 साल मैंने प्रिपरेशन चालू किया ईएससी एंड गेट का. थर्ड अटेम्प्ट है मेरा एट ईएससी आल्सो दिस ईयर, एट गेट आल्सो दिस ईयर, एंड इन गेट एवरीथिंग हैज वर्कड आउट फॉर मी. अब आई थिंक ईएससी में भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वैसा ही कुछ हो पाए सर, जो एक एस्पिरेंट को उम्मीद रहती है. तो definitely, Shubham, you are looking very honest, very sincere and dedicated student. I think God definitely will bless you with good result in the ESC also, and we also wish you, right. Shubham, one is a very interesting point from your journey. Having worked in Ola Cabs, that too in business analytics, left the job, right? Yes, sir, I did. What was your reason for that? Sir, the reason, there were this is basically 2-3 general reasons, or maybe specific to me, or any corporate employee I think gets the same reason. There were 2-3 things. For example, the technical aptitude that I have, right, I was not able to apply that. Basically it was a non-technical job kind of. Initially I was in actually learning that field, business analyst, so profile was new for me, so I learned that. And then after that also it kind of became monotonous sometime, मतलब this job, and थोड़ा monotonous है, और कुछ टाइम monotonous चल रहा है, कुछ टाइम पे ups and downs इतना ज्यादा आ रहा है, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह का है. तो वो सब के चलते मैंने सोचा कि लेट्स गो बैक, अपना जो भी सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया है उसी में कुछ आगे किया जाए. और उसमें अभी फिलहाल मुझे ईएससी एंड गेट बेस्ट ऑप्शन दिखा, तो आई डिसाइडेड टू क्विट इट एट ओला कैब्स. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, गेट एग्जाम है बहुत टफ, so you have to make a lot of preparation towards it. So when you left the Ola job, did you come across this type of feeling ever? Yes sir. So basically जैसा आपने बोला कि obviously इसमें एक lot of preparation required है. ऐसा नहीं हो सकता कि बिना preparation आप एक अच्छी रैंक ले पाए, अच्छी रैंक के लिए जाए. पर ओला कैब जब छोड़ा था सर, तो ये सारी चीजें दिमाग में थी
कि देखिए मे बी मैंने एक टारगेट लेके चला था, सेल्फ टारगेट था कि 1 से 2 साल के बीच में एग्जाम क्रैक कर लेंगे। उसके बाद का ये था कि अगर उससे ज्यादा भी समय लगता है तो कोई इश्यू नहीं है, सेविंग्स थोड़ा बहुत हो गया है, सब कुछ है, मैनेज कर लेंगे। लेकिन 1-2 साल का एक अपना सेल्फ टारगेट लेके चला था। थोड़ा सा वो सारी चीजें इवेल्युएट किया, उसके बाद क्विट करना इतना डिफिकल्ट नहीं था। लगा कि 1-2 साल है, पर द रिवॉर्ड्स एट द एंड ऑफ इट और मतलब वो कंपनसेट कर देंगे बेसिकली इस चीज को। तो वो सर मेरे को हेल्प किया क्विट। Right. Moreover, because you left such a good job of Ola company, so that would have been a driving force behind you, that something you have to work hard, you have to यस crack यस, some राइटली prestige सेड सर, examination, right? बिल्कुल एकदम So that would be one of सही। the driving force for you. Okay. Yes, sir. So basically, I'm losing out on a lot of things, right? Because there was मतलब that was a decent paying job. Yeah, even your friends, your parents also will oppose you when you are No, no, sir. No, leaving sir. such a job, having worked for almost 4 years. No, sir. So the thing is, there are two kind of circles. At that point of time, there were two kind of circles. एक है family side वाला circle, एक है friend side वाला circle. Family side वाला circle तो ऐसा था कि वो तो कॉलेज के बाद से ही सर ऐसा उनका था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। पर आई वांटेड टू ट्राई कि पहले देखें तो सही कॉर्पोरेट जॉब। मेरा ये था कि नहीं, पहले मैं ये करूंगा। उसमें उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन जब वापस ये डिसीजन लिया, उसमें भी वो थे कि वो तो उनके लिए तो अच्छा ही है। वो तो बोल रहे थे कि हम तो पहले ही ये बोल रहे थे आप। तो फिर वो लोग फुल सपोर्ट में थे कि आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ो, ये एग्जाम निकालो। लेकिन हाँ, फ्रेंड्स वाला सर्कल थोड़ा रहता है सर, वो सब लोग कॉर्पोरेट जॉब में ही इन्वॉल्व है। उन लोग को ये लगता है कि इतना प्रिपरेशन में टाइम देंगे, सारा सैलरी वगैरह लूज करेंगे, तो उससे अच्छा इसी फील्ड में एक्सेल करो। तो ये रहता है। पेरेंट्स ने बट सपोर्ट किया, फैमिली वगैरह का फुल सपोर्ट। Right. Very good. You please convey our best wishes to your parents and friends also. श्योर For सर, part of आई your शो देम दिस, success आई also. शो देम दिस इंटरव्यू डेफिनेटली सर। Yeah. Shubham, please tell us what type of coaching program you have availed from our ACE Engineering Academy. Yes, sir. So, from ACE Engineering Academy, I had taken the test series in the year 2022. So, basically, I think ESC plus GATE test series is there of ACE. So, वो मैंने लिया और उसका मैंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि मेरा हमेशा से फोकस सर, मतलब हमेशा से नहीं, बट 2022 के बाद से मेरा फोकस ये रहा है कि जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे को ये था कि टेस्ट मुझे हर जगह करने, और एस का फिर मैंने थोड़ा सा अपने सर्कल वगैरह में भी सुना था, तो इसलिए मैंने एस का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया। और वो भी मैंने अटेम्प्ट किया अपना जितना कर सकता था। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% मैं वो कर पाया, बट आई ट्राइड कि थोड़ा सा, क्योंकि वो हमेशा एक क्वेश्चन करना, टेस्ट वगैरह देना, ये आपको एक एडवांटेज देता है। तो उसके वहां पे मुझे आई थिंक हेल्प किया सर। Okay. And in our ACE test series, especially in the full length mock test series, where you used to stand rank wise approximately? सर रैंक ऐसा कभी फर्स्ट नहीं आया इसमें। जैसे हमने मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दिया है, फुल लेंथ टेस्ट भी दिया है, तो रैंक गेट वगैरह का ऐसा आ रहा है कि थोड़ा रैंडम हो जाता है। कभी मान लीजिए कि 10 रैंक आ गया है, कभी 2 रैंक आ गया है, कभी 30 मतलब 50s की रेंज में पहुंच गया है। तो रैंक थोड़ा रैंडम होती है, क्योंकि फर्स्ट से 50 स्टूडेंट सर मुझे ऐसा लगता है ना कि दे आर ऑल ब्रिलियंट। द डे एंड द टाइम मैटर्स द मोस्ट, कि किस मोमेंट में वो पेपर दे रहे हैं, कैसा हुआ है, तो वो सब सभी है, तो वो रैंक इंटरचेंज होता रहता है। Okay. And one more, Shubham. I think this this is your gate second or third attempt. थर्ड अटेम्प्ट सर, थर्ड अटेम्प्ट। If you don't mind, what were your ranks earlier? श्योर सर, आई May, तो 2021 में जब मैंने दिया 2021 में, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली सो 56 मार्क्स था एंड 2300 रैंक था। ठीक है। फिर 22 में दिया वापस से सेकेंड टाइम, उसमें 75 अप्रोक्सीमेटली समथिंग मार्क्स था एंड 309 रैंक था, 309। थर्ड में सर 83.11 एंड फर्स्ट रैंक। yes, excellent, Subhan. I think this should be one of the inspiration for many GATE aspirants, because यस सर। coaching academy elsewhere, many students they come to us, they request for different type, what you call motivation, inspiration, this type of things there. So your story is one of the good inspiration for many students. Whenever student gets some low marks, you shouldn't get discouraged, Yes, sir. They right? shouldn't get So if discouraged because student it's is a long dedicated and journey. disciplined, if he is focused, if he tries further, definitely Yes. one may end up with a what you call rank, what you have got all India first rank, right? Yes, sir. One Yes, needs sir. to have that what you call the self belief, and then
motivation, inspiration to continue self the. belief, self motivation, You are the perseverance. best example, Subhan, for Yes, this. sir. I think, yeah, I would agree, sir. I think I am best because I have continuously tried to improve myself, and Yes. that is what matters the most. In not only in GATE, sir, ESC also, I have a rising curve. Basically, up for 2000 ESC also, this time I'm writing for the No, third time. definitely, Subhan, I'm telling you, definitely you are going to be coming with flying colors in the ESC also. Subhan, yours is a successful story. So many students, they want to know eagerly from you the secret of your success, Subhan. Can you please elaborate the secret of success so that it will be useful for the younger generation who want to prepare for the GATE exam in general and Okay. civil engineering in particular? Okay, sir. So yes, so basically, sir, एक स्ट्रेटेजी है जो शायद इस साल मेरे लिए काम किया. मे बी दिस कैन वर्क फॉर ऑल स्टूडेंट और मे बी दिस कैन नॉट वर्क फॉर ऑल स्टूडेंट, बट मैं आई लाइक टू शेयर कि जितने लोगों का हेल्प हो सके. तो मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि जो फर्स्ट टाइम किसी भी कोर्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, वहां पे आपको बहुत हाई टारगेट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि जब आप बहुत हाई टारगेट्स रखते हैं वो अचीव नहीं होते हैं तो एक होपलेसनेस आती है, फील्ड ही छोड़ देने का मन करता है. तो आप एक मॉडरेट टारगेट रखिए, कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कॉन्सेप्ट भी बना रहे हैं, साथ में पूरा क्वेश्चंस वगैरह भी कर लें, साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर लें. टाइम बहुत लिमिटेड है हर एक के पास. आप फर्स्ट टाइम में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए जितना दे सकते हैं. उस सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करिए जो हाई वेटेज के हैं, उनको वेटेज दीजिए. सेकेंड टाइम जब आप करते हैं, सेकेंड टाइम जब आप एग्जाम लिख रहे हैं, उसमें एक ही चीज है, जो आपने कॉन्सेप्ट अच्छा बना लिया है उसका प्रैक्टिस करना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जो भी है, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करना है. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सेकेंड ईयर में आपका उतना ही अच्छा रैंक आएगा. और इसके अलावा आई डोंट थिंक सर कि किसी का भी कोई वो होता है जनरली स्ट्रैटेजी में, यही एक मेरे लिए भी काम किया और यही ज्यादातर लोगों के लिए काम करता है. तो आई थिंक सारे जो भी लर्नर्स हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए भी काम करेगा. Right. Subhan, जी सर. you said that your main target is the engineering services, isn't it? Yes sir. It Okay. is sir. We just want to know that did you make any specific extra preparation for the GATE exam? Otherwise, it was a part of your ESC exam preparation. सर गेट में कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं करना पड़ता है. मैं ये नहीं बोलूंगा कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो करने. ईएससी में जो सब्जेक्ट्स हैं उसका ही सबसेट है जो भी गेट का सब्जेक्ट है. लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ न्यूमेरिकल्स, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन. तो बेसिकली उसमें ये होता है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है सेम टॉपिक्स में कंपेयर टू ईएससी प्रीलिम्स. तो वहां पे आपको थोड़ा बेटर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर वगैरह प्रोवाइडेड है. लेंदी क्वेश्चन पूछने का उसके पास लिबर्टी है, वो पूछते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा अपना लेवल हाई करके चलना पड़ेगा. न्यूमेरिकल अच्छी क्वालिटी का आप लगाएंगे तो गेट में अच्छा रैंक को, प्लस वो ईएससी में भी, इनफैक्ट ईएससी में भी बेनिफिट देगा. अच्छा क्वालिटी का लगाए तो थोड़ा लो क्वालिटी का तो लग ही जाएगा. No, that's what I want to ask you, Subhan, because if you see this ESC prelims, calci is not allowed there. Whereas Yes if sir. you see the GATE examination, this is more a problem-oriented one. Small Yes sir. numerical Yes questions sir. that too, they Correct. Correct. require compulsorily help of what you call the calculator there. So you Correct. need to have more problem-solving skills with regard to the GATE examination. Exactly Comes sir. to the, what you call engineering services prelims, you have the GS and the technical, that too, more or less a theoretical questions. Yes sir. Yes sir. I just want to know that while making the preparation for ESC mains, did you spend some extra time towards solving the question using the calci, etc.? यस सर. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर कि सब्जेक्ट्स सेम है, मतलब उसका ही पार्ट है. जैसे टेक्निकल जो है ईएससी वाला सब्जेक्ट्स का पार्ट है, उसमें ही थोड़ा वेटेज एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग है, लेकिन उसका पार्ट है. तो उसमें हमें डेफिनेटली दो चीजों पे टाइम देना पड़ेगा. एक, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो क्वेश्चन हमें अच्छे लेवल का, ईएससी वाले लेवल का ईएससी का पीवाईक्यू पढ़ने से नहीं होगा, या फिर ईएससी की टेस्ट सीरीज भी, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट सीएससी की टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो उसकी लेवल के हिसाब से बना रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज भी इवन हेल्प नहीं करेगा. आपको गेट का ही टेस्ट सीरीज करना पड़ेगा, वो आपका एडिशनल टाइम है. दूसरा, आपको जो कैलकुलेटर है वो भी वर्चुअल कैलकुलेटर है. बेसिकली जो कैलकुलेटर नॉर्मली डे टू डे लाइफ हम यूज करते हैं वो नहीं है. वहां पे भी आपको प्रैक्टिस करना है कि जब आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कहीं से भी, तो आप मेक श्योर करें कि गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर ही आप यूज करें. ऐसा उस टाइम वो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पेपर में हम कर लेंगे, तो आप प्रैक्टिस उसी तरीके के पहले से कीजिए. तो ये दो तीन एडिशनल एफर्ट्स हैं सर
जो गेट के एक एस्पिरेंट को ध्यान देने पड़ेंगे अगर ईएससी के I साथ think कर। I just want to add one more thing. I think when you are targeting GATE exam, you need to solve most of the previous years GATE questions also. Yes sir, correct sir, definitely. So PYQ is a must. PYQ for any exam is a bible. तो वो Yes. हम करना ही करना है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो पीवाईक्यू अगर गेट दे रहे हैं तो गेट का तो करना ही करना है सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। Yeah. One more aspect, Subhan, you are the right person to tell about this one. See, in this competitive examinations, revision plays a crucial role. Sorry sir, I could not get that question. Can you please So in repeat? this competitive examination, Yes sir. revision plays a crucial role, Yes sir, it does. important role. So Yes in sir. your case, how you used to revise the syllabus? How ठीक है, often you used to revise? हाँ तो सर बेसिकली रिवीजन स्ट्रेटजी उस पे डिपेंड करता है मेनली कि आप कौन से नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईएससी और गेट अगर आप अच्छी रैंक से क्रैक करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मान लीजिए स्टूडेंट्स को एक लेसन है कि जैसे वो सोच रहे हैं कि एक या दो बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वही चीज रिवाइज करनी है, तब जाके कहीं गेट या ईएससी में अच्छी रैंक आती है। तो स्ट्रेटजी चेंज होती है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं सर, आपको पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम ऑलमोस्ट आपने फर्स्ट टाइम लर्न करने में किया होगा ऑलमोस्ट में भी उतना ही टाइम, क्योंकि आप कुछ टाइम बाद रिवाइज कर रहे होंगे, उतना ही टाइम शायद रिवाइज करने में भी चला जाए। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता है उसके बाद वो एफर्ट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना चाहिए कि अब हमें उतना टाइम नहीं लग रहा है रिवाइज करने में, अब हम एक सब्जेक्ट 3 घंटे में भी 4 घंटे में रिवाइज कर ले रहे हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पता चल चुकी है वही चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो भूलने वाली चीजें उनको देख ले रहे हैं। तो ये सारी चीज पूरा थ्योरी पढ़ना एंड इन nth मतलब बेसिकली बहुत आगे जाके रिवीजन में इज नॉट नेसेसरी। तो ये मेरा एक रिवीजन स्ट्रेटेजी रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सर ओवरऑल। Okay. Now, to carry out this revision, did you prepare any short notes additionally? No sir, personally I did not prepare any short notes of it because in this particular examination sir, for both the examination, जैसा मैंने कहा ना कि मेरा इस बार थर्ड बार तक आते आते डिसेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज हो चुका था। अब मुझे नोट्स में, अपने खुद के नोट्स में या फिर मैं जिन भी नोट्स से पढ़ रहा हूँ ना, उसी में मुझे पता है कि क्या क्या एक तरीके से शॉर्ट नोट्स का हिस्सा है। तो उसी में मेरा खुद से ही आइडेंटिफाइड है कि ये अगर मैं शॉर्ट नोट बनाता तो यही डालता, तो मैं वो उसको वहीं पे देख लेता हूँ, वही मेरे लिए एज अ शॉर्ट नोट काम करते और हैं। कुछ हाईलाइट भी कर सकते हैं उधर, हाईलाइट भी हाँ कर सकते हैं डिफरेंट करेक्ट, कलर वो में। सारा चीज कर लिया कि उतना ही बस आप देखेंगे तो वही वही मेरी आंखें ऑटोमेटिकली स्कैन करेंगी कि बस अब यही शॉर्ट नोट्स के नाम पे है मेरे पास, अलग से कोई शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं। Okay. One more, Shubhan. In our हम्म civil engineering, हम्म especially if you talk about the GATE examination, if you हम्म see geotechnical engineering subject has got a weightage of 15 to 16 marks, यस and सर, again followed by the environmental engineering around 13 marks, then यस you सर, can see good weightage for the transportation engineering also. यस So सर। these select that we have some subjects which are given very good weightage there. So some students they give more priority for this subject and they give the less priority for the other subjects. But यस सर, a person like you who is aiming a very good rank in the GATE or a very good rank in the करेक्ट ESC, करेक्ट, they need to focus on every subject as well, isn't it? यस सर सर। So, सो what was your strategy with regard to this particular question? यस सर, so I think that is a perfect question and I am the perfect candidate to answer that because I have scored in every range basically in this like I said in the first attempt I scored 56। तो उसमें मेरा स्ट्रैटेजी ये था ना, क्योंकि मैं पहली बार गेट एग्जाम लिख रहा हूँ, मेरा बहुत हाई टारगेट्स मैंने अपने लिए नहीं सेट किया है। मेरा ये था कि जो जो सब्जेक्ट एग्जैक्टली आपने मेंशन किया ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉइल हो गया, एनवायरमेंट हो गया, प्लस मैथ एप्टीट्यूड, ये सारा मिला के 60 प्लस का वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली। अब मेरा ये था कि क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा समझ भी आ रहा है, मैथ एप्टीट्यूड नेचुरली अच्छा है, सॉइल और ट्रांसपोर्टेशन में न्यूमेरिकल्स हैं वो हो जा रहे हैं, ये सारी चीजें अच्छी, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में वो मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि 60 प्लस 70 नंबर का अटेम्प्ट किया है, उसमें 56 मार्क्स आ गया। लेकिन जब आप सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ प्रिपरेशन में है सर, उस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर सकती है। जब आप टारगेट कर रहे हैं 80-85 मार्क्स, तो आपका कवरेज 100% चाहिए। ऑल्दो वो 100% पूरा इक्वली डिवाइडेड नहीं होगा कि मैंने सारे सब्जेक्ट उतने ही डेडिकेशन से उतने ही टाइम देके किए हैं, लेकिन कवरेज 100% होना चाहिए सर उस टाइम पे। उस टाइम पे यू कैन नॉट गिव स्पेशल प्रायोरिटी टू फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एंड लीव सोम कि वो तो करना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं सर उस टाइम पे सारा कवरेज लेके चलना है। Right. So for this GATE preparation, in your opinion,
Is it necessary to prepare this previous year's questions of ESC? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग पूछते हैं बात है सर, सर आई गेट के थिंक लिए ESC के PYQ करना पड़ता क्या करके आप ओके, what is सो आई थिंक सर द कन्वर्स इज ट्रू बेसिकली, कि अगर ईएससी का आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो मे बी मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मे बी आपके लिए गेट करना जरूरी है कि अगर आप ईएससी का, क्योंकि न्यूमेरिकल का लेवल अच्छा है तो वो ईएससी में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईएससी मे नॉट बी ऑफ मच मतलब हेल्प, क्योंकि उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो जनरली गेट exactly because GATE is न्यूमेरिकल। more problem oriented one, Yes, problem and specific रहता है हाँ yes sir, yes sir, the problem oriented. So I don't think personally कि बहुत ज्यादा उसको yes हेल्प है स्टूडेंट no को। that is what our opinion also because Okay, ESC is prelims if you see basically theory oriented questions. yes sir, In correct. GATE also we have theory oriented questions but there are very few questions especially Very few MSQs questions, but good quality questions. MSQs especially. MS, yeah, And that too especially MSQ and this year there were this some year. considerable number of MSQs in the paper also. And sir, the complicated मतलब basically the nature of MSQs was also मतलब basically काफी चेंज हो गया है पिछले साल से। इस बार का MSQ ऐसा है कि जिससे भी हम लोग पूछ भी रहे हैं सबका 50-60% MSQ तो गलत है। सबसे ज्यादा मार्क्स ही MSQ में गए हैं। NAT वगैरह और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो लोग लेके आए हैं सर, और वो ही मेरे साथ भी हुआ। MSQ में ऑलमोस्ट 50-60% गलत रहा। तो Right. Yes, हाँ, yes. The यस सर, questions were like that. Okay. And यस one more, सर। Shubhan, one more. In your preparation, did you refer to any textbooks? सर अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू टेक्स्ट बुक दैट टू मतलब बहुत ही एक या दो टॉपिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट जो होता है हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसके लिए बीसी पुनमिया रेफर कर लिया थोड़ा सा सेगमेंट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। लेकिन पूरा डेडिकेटेडली मैंने टेक्स्ट बुक को कभी भी फोकस नहीं किया। मेरा ये है जो क्लास नोट्स हैं दोज आर सफिशिएंट। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो आप जहां से पढ़ रहे हैं वहीं वहां की भी थ्योरी बुक्स भी आपको मिल रही हैं, वो भी थोड़ा बहुत वगैरह देख सकते हैं। पर उसके अलावा यू डोंट नीड टू कवर एनीथिंग। वो जहां भी आप पढ़ रहे हैं आप उन पे भरोसा रखिए कि उन्होंने मटेरियल बनाया है तो ऐसा बनाया होगा कि सारे एग्जाम्स आपके कवर करेगा। तो Right. वो Good. ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है जहां भी आप पढ़ रहे हैं। Right. Moreover, to study the classroom notes and then revision work, again, referring to textbooks will be a burden for the students. Yes sir, so it's a waste of time and you need to optimize your time, so Not no necessary. other way out. Not necessary. So yes sir. Yes. Shubhan, one more thing. Mhm. Normally, the students become very nervous and tense before that gate examination. Yes So, sir. what do you say? What should be the attitude of the student just before 1 week before the gate examination? 1 week So before the gate. sir, I उसमें ये है कि जो आपने बोला नर्वसनेस है, एंजाइटी है, ये इवन थर्ड ईयर ऑफ प्रिपरेशन में मेरे साथ भी, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, जो दोनों साल का है, दोनों साल मेरे साथ भी रहा। हम ह्यूमंस हैं, एक एग्जाम में अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नर्वसनेस फील करना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, सब लोग फील करते हैं। मतलब 100 में से मे बी 99 स्टूडेंट फील करता होगा, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नर्वसनेस अगर आप फील भी कर रहे हैं, अपने अगर पूरे साल इस चीज पे भरोसा रखना है कि आपने अगर पूरे साल प्रिपरेशन अच्छी करी है तो वो 6-7 दिन का पीरियड आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं कर सकता है। तो मेन चीज ये है कि जिस जिस टाइम पे आप नर्वस नहीं है, जबकि 7 दिन से पहले का पीरियड, उस पे आप अपना फुल एफर्ट मारें, वहां पे आप अपनी पूरी मेहनत करें। उसके बाद वो 7 दिन की नर्वसनेस इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, दैट कैन बी कॉम्पनसेटेड। Okay. Now, what did you prepare in during that last 1 week before the examination? सर लास्ट 1 वीक में स्ट्रेटेजी यही रहता है कि जैसे थ्योरेटिकल जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना सर, वो लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट 7 डेज में हमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, वो हमें ऑलरेडी याद है। कोई ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो मे बी कई बार भूल जाता है तो वो आप देख सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। प्लस जो थ्योरेटिकल थोड़े सब्जेक्ट्स हैं, या फिर हर सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी थ्योरी तो है ही, वो थ्योरेटिकल पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटिवली कम टाइम के लिए रिटेन होता है दिमाग में। वो मे बी लास्ट 7 डेज में कर सकते हैं, पर न्यूमेरिकल भी इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो आप पहले ही अपने स्ट्रॉन्ग बना के रखिए ताकि लास्ट में उतना उस पर जरूरत ना पड़े सर। Okay. Last but one question. What श्योर was your सर। strategy in the examination of the gate? In the 3 hours of examination, यस what सर। was your exact strategy? Did you तो answer the first 2 marks question, then went for 1 mark, or as per the order they appeared on the screen? नो सर, सो बेसिकली इन दोनों में से ही मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था। मेरा स्ट्रैटेजी मैं बता दूं, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज भी बहुत सारा दिया है। टेस्ट सीरीज क्या हेल्प करता है ना एक्चुअली, वो एग्जाम में भी आपका
कैसे अटेम्प्ट करना उसको भी फ्रेम करवाता है। टेस्ट सीरीज देख के मुझे रियलाइज हुआ, मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो है मेरा मैथ एंड एप्टीट्यूड। गेट के एग्जाम में सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक, मैं फर्स्ट 15 मिनट्स में वो 15 मिनट्स का जो 15 मार्क्स का शुरू का 10 क्वेश्चन होता है वो ओनली एप्टीट्यूड ही है और थोड़ा सा इंग्लिश है, वो 15 मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट में। मतलब मेरा थोड़ा फास्ट है तो मैं कोशिश करता हूँ 15 मिनट में 15 मार्क्स एक बार सिक्योर कर लें। अब आपके पास बचा है लगभग 165 मिनट्स, आपके पास स्कोर करने को है 85। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वैसे ही टाइम मेरे पास मार्क्स के हिसाब से टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं उसमें भी जाऊंगा, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 2 नंबर क्वेश्चन हो, मैं उन सब्जेक्ट्स पे जाऊंगा जो मेरे स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए थोड़ा पूरा होवर करना पड़ेगा, इधर से उधर कभी आपको जंप अराउंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये देखूंगा कि उसमें टाइम लगा लूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो पहले करता हूँ। कम टाइम में ज्यादा मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, प्लस एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो कॉन्फिडेंस मिलता है तो जो थोड़े कम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी इस बार रही है सर। Right. See, you got 83.11 marks in the यस GATE सर। exam out of 100. यस सर। So, do you know why you have lost that 17 marks nearly? यस सर, आई डू दैट सर। बेसिकली जो मार्क्स लॉस्ट है वो उसका मैं बाइफर्केशन बताता हूँ एग्जैक्टली ऐसा क्या है। 1 नंबर के आसपास है, 1 नंबर बेसिकली है नेगेटिव मार्क, उसके लिए बेसिकली कह सकते हैं कि 3 मार्क्स का मेरा एक्चुअल क्वेश्चन गलत हुआ होगा, क्योंकि 1 नंबर मेरे को नेगेटिव मिला है तो 3 मतलब 4 मार्क्स वहां पे कट गया। वो गलत किस वजह से हुआ है, ए बिट ऑफ सिली मिस्टेक्स हो गया। ठीक है, वो नेचुरल है, अगेन उसमें इतना वो नहीं होना है, वो हर एक के साथ होता है, थोड़ा पूरा 100% नहीं कर सकते हम मे बी, थोड़ा बहुत वहां पे वो सिली मिस्टेक्स हो गया। कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, या फिर एक डेटा पढ़ने में आपने मिस वो थोड़ा सा मिस कर दिया, या फिर कुछ और। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं। प्लस 2 एनिटीज थे, 2 एनिटीज मतलब 4 नंबर के एनिटीज थे, जिसमें मैं फिर वही है कि आंसर इधर से उधर थोड़ा सा हो गया है, मतलब वही मिस्टेक्स है। प्लस एमएसक्यूज इस बार के सर बचे हुए जो नंबर्स हैं वो मेरे एमएसक्यूज में चले गए हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि 17 में से 9-10 नंबर मेरे एमएसक्यू में गए हैं, 10 नंबर जो कि मैं वहां पे प्लस 7-8 नंबर ये सिली मिस्टेक्स, ये दो ही चीज। कवरेज मेरी 100% थी, मैं पूरा 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करके आया था सर इस बार। Good, good, Subhan. You have given so many valuable points. You have made a lot of discussion. I think जी सर। the discussion what you had, the strategy what you have followed, all these will be very useful for the younger generation, yes, especially who prepare for this GATE examination in the coming years. One आई last होप सो question, सर। Subhan. यस। Apart हाँ from हाँ। these points, apart from हम्म। these points, do you like to give any other suggestion or tips to the aspirants of the GATE exam, particularly in the civil engineering? सर सिविल इंजीनियरिंग या फिर इन जनरल, इसका इसका एक आंसर जनरल एक आंसर है सिविल इंजीनियरिंग के अलावा भी सर, कि कोई भी एग्जाम है ना, उसको जब आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उससे पहले उस एग्जाम में कितना एफर्ट लगने वाला है वो सारा अपना माइंड मेकअप करना सबसे पहले जरूरी है सर। कि मेरे को आप मान के चलिए कि गेट में फर्स्ट रैंक लाना है या फिर 10 रैंक लाना है, तो आप मान के चलिए पहले से कि लेट से 2 साल लगने वाला है। तो 2 साल के बीच में अगर मान लीजिए अप्स एंड डाउन्स आपके आते हैं, तो आप पहले सोचिए कि मैंने 2 साल तो सोचा हुआ था ना, 2 साल तो मुझे अपना बेस्ट एफर्ट देना ही। प्लस जो भी हो, जिस भी फेज से आप गुजर रहे हैं, ये फेज पास हो जाएगा, आपका भी एक टाइम आएगा शाइन करने का, सब कुछ अच्छा होगा, बस हमें लगे रहना है, इस एग्जाम को छोड़ना नहीं है। एक बार हमने टारगेट सेट कर लिया तो हमें बस ये एग्जाम क्रैक करके रहना है। तो ये आई शेयर दिस टिप विद एवरीवन That is सर। a general tip, right? यस दैट इज अ In जनरल टिप। particular for civil engineering students, would you like to share anything? सर एस्पिरेंट्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग के वैसे तो हम लोगों ने काफी सारा बात किया, पर यही है कि कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह सिविल इंजीनियरिंग का पर्टिकुलर यही टिप है, इसके अलावा कि कुछ सब्जेक्ट्स आप मतलब दिल से नहीं लगाना है कि ये सब्जेक्ट नहीं ही समझ में आ रहा है तो आप उसमें अननेसेसरीली बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसे छोड़ें, मे बी किसी अदर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वही सेम चीज समझ में आने लगी। तो बहुत ज्यादा स्टक नहीं होना है किसी भी जगह पे, मतलब हमें टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो अगर कहीं पे हो रहे हैं उसको आगे आगे बढ़े, दूसरी चीज पढ़े, फिर वापस आए, फिर वो चीज देखें। तो ये वाली चीजें बहुत सारे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं, ये चीज समझ ही नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, वो नहीं करना है सर। हमें अपना टाइम बेस्ट यूटिलाइज करना है। Very good, Subhan. I थैंक once यू। again congratulate you on getting this All India first rank, and थैंक I यू सो take the मच सर। opportunity to wish you all good luck in all your future endeavors. God bless थैंक you. यू सो मच सर। God bless you. या थैंक यू सर।